Hello dear students, how are you? You are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our first chapter from our book Vistas, the Third Level, written by Jack Finney. Jack Finney is an American writer and he is famous for his writing in science fiction and thrillers. The title, third chapter. There are three characters in this lesson. First, Charlie, who is the protagonist or the main character. And he is a 31-year-old. Second, wife of Charlie, Louisa. And third is Sam Warner. Friend and psychiatrist. There are three characters in this lesson. First one Charlie, second Louisa, and third is Sam Warner. In this lesson, third level, Jack Finney describes a term, time travel. What do you mean by time travel? Time travel is a concept in which a person or anyone backward and forward in different points of time, different points in time. Charlie, who is the protagonist or the main character, he says that there are three levels on Grand Central Station. Grand Central Station. He says that there are three levels on Grand Central Station. There are three levels on Grand Central Station. And he visited third level. But the presidents of New York Station, the president of New Grand Central Station, Hartford Station and New Haven, they say that there are only two levels. How Charlie reached third level here? We study it. One day Charlie was worked late in his office and he was in a hurry to go home to his wife Louisa. And for that purpose, he took train. For taking train, he went to Grand Central Station. First,
he went to first level. Then he took a short flight of stairs. उसने short flight of stairs ली. And he was proceeding a corridor which turns left. When he was going through that corridor which turns left up, and then the corridor slanting downwards, और तब ये नीचे जाना उसने शुरू किया डाउनवर्ड. He thought that he was on the wrong track. He missed his way, but he kept on walking. चलता ही रहा. यद्यपि उसको ऐसा लगा कि वह गलत रास्ते पर है, लेकिन वो चलता ही रहा. And after some time he reached third level. Because why he call it third level? क्यों इसको थर्ड लेवल कहता है? Because the people who were there, they were wearing different types of clothes. People were wearing old-fashioned clothes like 1890s. Clothes 1890s. There were fewer tickets windows. कुछ थोड़ी खिड़कियां थी वहां पर. Information booth was there in the middle. Information booth made of wood and old looking. वो इंफॉर्मेशन बूथ था, वो लकड़ी का बना हुआ था और बिल्कुल पुराना लग रहा था. लाइट वॉज डिम, प्रकाश मध्यम था. एंड लाइट वॉज फ्लिकरिंग. देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड फ्लिकरिंग. हिल रही थी वो, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस थी. People were wearing old-fashioned clothes, fewer tickets windows, information booth was wood, light was dim and flickering. ये भी क्वेश्चन बन जाता हमारा. Describes Charlie experience as third level. You have to write down these information. उसके बाद वहाँ पे उसने देखा कि उसको ये लगा कि ही हैज़ रीच थर्ड लेवल. टू मेक इट कन्फर्म, इस बात को उसने कन्फर्म करने के लिए कि वास्तव में वो थर्ड लेवल पे आया है, इस बात को कन्फर्म करने के लिए देयर वाज ए पेपर बॉय हु वाज सेलिंग न्यूज़पेपर. ही वेंट देयर एंड सा the stack ढेर of newspaper. वहाँ पे देखा उसने उस न्यूज़पेपर के, जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसके ढेर के पास उसने देखा there was a newspaper, the name The World, and The World was not published for so many years. वो पहले छपता था, अब उसको बहुत साल हो गए थे छपे हुए. and later he confirmed about that newspaper. The World
he confirmed from the public library, and the date on that newspaper was June 18, 1894. That was the date on that newspaper. He wanted to go Galesburg, Illinois. Galesburg, इलिनॉस। वह गेल्सबर्ग इलिनॉस में जाना चाहता था। अब गेल्सबर्ग इलिनॉस में क्यों जाना चाहता था? बिकॉज ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड डेज देयर, उसने अपना बचपन वहाँ पे बिताया था। इट वॉज आ वंडरफुल टाउन। भाई वहाँ पे किस वो गेल्सबर्ग को कैसे डिस्क्राइब करता है चार्ले, तो इट वॉज आ वंडरफुल टाउन, वंडरफुल टाउन, big lawns there, and people spent their long summer evening chatting with each other. लोग वहाँ पर अपनी जो लंबी गर्मी की जो शामें थी वो एक दूसरे से बात करते हुए बिताते थे। एंड इट वॉज ए हेवन, ये हेवन था वहाँ पर उस टाइम। सो चार्ले वांटेड टू गेल्सबर्ग इलिनॉस, वो गेल्सबर्ग इलिनॉस में जाना चाहता था। अब ही वांटेड टू बाय टू टिकट्स, वन फॉर हिज वाइफ लुइजा एंड सेकंड फॉर हिमसेल्फ। दो टिकट वो वहाँ पे लेना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉस के लिए, वन फॉर हिमसेल्फ एंड वन फॉर हिज वाइफ लुइजा। एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपने लिए। और टिकट लेने के लिए वो टिकट बूथ पर जाता है। एंड व्हेन ही गेव ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी, क्योंकि उसके पास तो न्यू टाइप की करेंसी थी और वहाँ पर क्योंकि वो पास्ट में गया है तो वहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती थी वो ओल्ड टाइप करेंसी यूज़ होती थी। और उसने वहाँ पे उसके ड्रॉर में भी देखा ओल्ड टाइप करेंसी। जब उसने उस टिकट क्लर्क को न्यू टाइप की करेंसी दी तो टिकट क्लर्क ने उसको बोला दैट आर नॉट मनी मिस्टर, कि ये रुपए नहीं हैं। और इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मेरे को बुद्धू बनाने का, मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, यू वॉन्ट गो फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मीन्स यू कुड बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वो डर करके जो चार्ले है ही रश्ड फ्रॉम देयर, वो वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है और वो प्रेजेंट में आ जाता है। जो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो चार्ले हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट करता है, अपने मित्रों के साथ ये सारी चीज़ें बताता है कि कैसे वो थर्ड लेवल पर गया है। और जो उसके मित्र हैं उनमें जो उसका एक फ्रेंड है, साइकिट्रिस्ट फ्रेंड, जो मानसिक जो बीमारियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक, उनको ट्रीटमेंट करता है, तो उसको और अपने दूसरे साथियों को बताता है कि मैं थर्ड लेवल पर गया था, लेकिन कोई भी नोबडी बिलीव्ड अबाउट हिज व्हाट ही सेड, जो उसने कहा कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। दे से, और जो सैम है उसका फ्रेंड, वो कहता है इट इज़ ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वो उसको कहता कि भाई तुम जागते हुए स्वप्न देख रहे थे। अब वो उसने ऐसा क्यों कहा? उन्हें कहा दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वरी, वार,
एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हर कोई इस संसार से एस्केप करना चाहता है, पलायन करना चाहता है, और यही तुम्हारे साथ हुआ और तुम वहाँ पर पहुँचे। एक्चुअली यू आर इन प्रेजेंट, वास्तव में तुम वर्तमान में ही थे और तुम पास्ट में नहीं गए। और तुम्हारा जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग है, स्टैम्प कलेक्टिंग जो तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, ये भी क्या है, एक टेम्पोररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी। टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, तुम वास्तविकता से बचना चाहते हो और इसलिए जो तुम्हारा स्टैम्प कलेक्टिंग है वो भी एक टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। और जब ये सारे जो बातें हैं उनके फ्रेंड ने बताई तो उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया, और जो उसकी वाइफ है वो भी उसके लिए चिंतित हो गई, और जो चार्ले है जो वहाँ पर उसको सर्च करना चाहता था, नेक्स्ट डे वो अगले दिन जाता भी है अपना हाफ डे काम करने के बाद अपनी, और उसने कितने 200-300 जो डॉलर की ओल्ड टाइप करेंसी ली, जो उसको ओल्ड करेंसी ली, और उसको लेस देन 200 डॉलर्स उसको ओल्ड टाइप करेंसी मिली। लेकिन ही कुड नॉट फाइंड थर्ड लेवल अगेन। लेकिन दोबारा से जो चार्ले हैं यहाँ पर थर्ड लेवल को नहीं ढूंढ सका, और उसने बाद में अपनी जो सर्चिंग थी वो एंड कर दी। और एक दिन when he was searching through his stamp collecting and first day cover, he found a first day cover there. What a first day cover is? हमने फर्स्ट डे कवर को पहले जानना है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। What a first day cover? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर। दिस इज ए कस्टम, एक रिवाज है जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स, उनमें when a new ticket is issued, एक जब भी नई टिकट इशू होती है, they buy new ticket and they mail that ticket to their own address on an envelope. एक इन्वेलप के ऊपर वो उस टिकट को लगा करके अपने ही एड्रेस पर मेल करते हैं। एंड द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट जो है वो डेट को प्रूव करती है। स्टैम्प प्रूव द डेट, जो फर्स्ट डे जो होता सेल का, उस दिन वो ले करके उसको अपने एड्रेस पर मेल कर देते हैं। और जो उसमें देयर द इन्वेलप एम्प्टी, वो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। देयर इज ए ब्लैंक पेपर, खाली कागज होता है उसमें। और तब जब वो उसको देख रहा था तो उसको वहाँ पर एक फर्स्ट डे कवर मिला। एंड दैट फर्स्ट डे कवर इज नॉट एम्प्टी, खाली नहीं था वो। उसमें ही फाउंड अ लेटर रिटन बाय सैम वैनर। सैम वैनर के द्वारा उसमें लिखा हुआ एक लेटर उसको मिलता है। एंड द एड्रेस ऑन दैट लेटर वाज 1941 विलार्ड स्ट्रीट, ये उसके ऊपर वहाँ पे एड्रेस था, गेल्सबर्ग इलिनॉस। वहाँ से उसने उसको उसके जो ग्रैंडफादर का जो एड्रेस था वहाँ पे उसको मेल किया हुआ था सैम वैनर ने। अब उसमें उसने लिखा हुआ था दैट आई हैव रीच्ड थर्ड लेवल, मैं तीसरे तल पर पहुँच गया हूँ मैं।
एंड आई वॉज इन्वाइटेड फॉर लेमनोडे, उसको लेमनोडे के लिए इन्वाइटेड किया गया था, नींबू पानी के लिए। एंड ही वॉज इंजॉइंग देयर, वहाँ पे आनंद ले रहा था वो। अब जो सैम था वो ही इज़ अ साइकिट्रिस्ट फ्रेंड एंड नाउ ही हैड रीच्ड थर्ड लेवल। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया है। और बाद में जो है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, चार्ले जो मेन कैरेक्टर है, ही सर्च लेटर, तब उसने बाद में सर्च किया, तलाश किया, ही फाउंड आउट, उसने ढूंढा क्या कि जो सैम वैनर है उसने $800 जो ओल्ड टाइप करेंसी थी वो $800 की वो उसने कॉइन डीलर से ली और बाद में वहाँ पर थर्ड लेवल में पहुँच गया वो। ये जो हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे हमने स्टोरी की है। अब थोड़ा सा हम जो इसका कंक्लूज़न है वो करते हैं कि भी जो एक्चुअली में थर्ड लेवल है क्या। जो थर्ड लेवल है, यहाँ पर जो हमारा ऑथर है जैक फिन्नी हैज़ यूज्ड साइंस फिक्शन याना ऑफ टाइम ट्रैवल जो साइंस फिक्शन याना है और टाइम ट्रैवल उसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर इस लेसन में। पीपल wants to escape from the harsh realities of life, जो लोग हैं वो हमारे जो जीवन के हार्श रियलिटीज़, जो कठोर वास्तविकताएं हैं, उनसे बचना चाहते हैं। People wants to escape from the harsh realities of life, जीवन की जो कठोर वास्तविकताएं हैं उनसे बचना चाहते हैं। और यही इस लेसन में होता है। चार्ली हु इज़ अ 31-year-old गाय, वह ये एक्सेप्ट नहीं करता, दो ही डजंट एडमिट इट दैट ही इज अनहैप्पी। ही वांट्स टू गो इनटू द पास्ट, इन द पास्ट, ही वांट्स टू गो इन द पास्ट। अब वो जाना क्यों चाहता है? बिकॉज ही इज अनहैप्पी, बिकॉज ही इज अनहैप्पी। He liked the life which he used to live in Galesburg, Illinois in 1890s. वो लाइफ उसको जीना चाहता है, वो जो उसकी बचपन वाली लाइफ थी गेल्सबर्ग इलिनोस में। अब एक्चुअली देर आर ओनली टू लेवल only. And the third level has been used by our author, a medium of escape, as a medium of escape. Now our lesson has finished. If you like this video, then share it and subscribe it. Thank you.